Okay, now we have the last chapter of second year, which is vectors. Okay, for this chapter मैं आपको बताता चलूँ, this is pretty basic stuff. आप लोग ये physics में भी बहुत पढ़ रहे होंगे, पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा. So we're going to quickly run through the revision of this. A vector is defined by magnitude and direction. अगर हम coordinate system में बात करें, हमारे पास एक vector का show हो रहा है, then the point at which it ends is now xy suppose. Then the vector AB is represented by AB with an arrow on top, and the angle that it makes with the x-axis, which is theta, will give the direction of the vector. There are two ways to show this. Either with हम कर सकते हैं pointed brackets, जिससे हमारे पास x और y आ गया, that is the vector, और xi plus yj. This is unit vector form of representation. उसके बाद हमारे पास दो equations हैं, one is for the magnitude and the other is for the direction. The magnitude of the vector AB is given by straight bars. उसके around, that is the way to show it, and then the magnitude in this case is x square plus y square का whole square root. एंड इफ़ अगर हम 3D जो है बात करें, 3D में तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट. बट खैर हम इस पर बाद में देखते हैं मजीद. सो उसके बाद हमारे पास हो गया दी एंगल विच इज़ थीटा. थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स इन आर केस. दैन नेक्स्ट अब हम देखते हैं बट आई एंड जे एक्चुअली आर. दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड आई जे के क्या होता है. So I, J and फ्यूचर में जब हम K का पढ़ेंगे, so these are the unit vectors. They only show the direction and their magnitude is 1. So I in this case is the direction of the x-axis and it is magnitude 1. अब हम एक फॉर्मूला को देखते हैं which is very important for your MCQs. It says कि suppose if we have to find the direction vector or the unit vector from a given vector, तो हम क्या करेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी हैट से. तो ए बी हैट विच इज़ द यूनिट वेक्टर इन ए बी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अगर मैग्नीट्यूड को उसमें से डिवाइड कर देंगे सिर्फ उसकी डायरेक्शन पीछे रह जाएगी. ओके, सो दिस विल गिव अस द यूनिट वेक्टर इन ए बी डायरेक्शन. एंड ऑल्सो समथिंग टू रिकैप इज़ कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स गिवन है और हमको ऐड करना है, सो ग्राफिकली वी यूज़ द हेड टू टेल रूल. हम एक वेक्टर की टेल को अगले वेक्टर के हेड से लगाते हैं एंड वी कनेक्ट द हेड एंड द लास्ट वेक्टर का टेल. So the first vector की tail and the last vector का head, and that will give us the resultant vector which is the sum of the two vectors. अगर mathematically बात करें, so we have to add the I unit vector की components and the j unit vector components individually. Okay, next concept is very simple. It's parallel and then we have anti-parallel vectors. Parallel vectors are those which are of course parallel to each other but also in the same direction, and anti-parallel are those which are parallel in direction but which are parallel to each other but opposite in direction. So अब इसमें हम इक्वेशन वाइज बात करें तो अगर हम एक भी वेक्टर या किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब हम उसे किसी भी जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है, हम उसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल गिव अस ए पैरेलल वेक्टर टू इट. एंड इन द सेम वे अगर हमारे पास ए वेक्टर है, हम उसको नेगेटिव के से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल गिव अस द एंटी पैरेलल वेक्टर टू ए. एट दिस पॉइंट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक बहुत बहुत ज़रूरी फार्मूला देखें. दिस विल हेल्प अस to divide a vector into a certain ratio. हमारे पास एक vector suppose given है which is AB. ठीक हो गया. This vector is in free space. It does not have its tail at origin. So अब हम बात करते हैं what are its position vectors. A position vector is a vector that points to a certain point from the origin. तो जो पॉइंट ए को पॉइंट कर रहा है वो होगा ओ ए पोजिशन वेक्टर. इसको हम स्मॉल ए से डिपिक्ट करते हैं फॉर नाउ. और जो ओ बी को जो बी तक का वेक्टर है वो होगा ओ बी एंड वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट होता है. सो दैट इज़ व्हाट ए पोजिशन वेक्टर इज़. दिस इज़ अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट. दिस इज एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझेंगे कि रेशियो फॉर्मूला क्या होता है फॉर वेक्टर्स. तो अब हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए बी, हमने उसके पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ किया, एंड सपोज हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया ओ पी विच कट्स द वेक्टर ए बी इन पार्ट्स सी एंड डी. सी रेशियो डी में कट करता है. सो पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो सी ओवर डी. सो इसका जो फॉर्मूला होगा ऑफ ओ पी वो होगा इक्वल टू सी ए प्लस डी बी ओवर सी प्लस डी. द रेशियो जो है उसको हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे विद दी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स. जो सी रेशियो है ऑफ द गिवन वेक्टर वो है नेक्स्ट टू ए पॉइंट, तो हम उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे को ऑफ कोर्स हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट विल गिव अस द रेशियो फॉर्मूला ऑफ हाउ टू डिवाइड अ वेक्टर इनटू एनी गिवन रेशियो. अगेन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमने उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, किस तरह करेंगे. अगर हमने ऐड करना है, हमने उनको इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस x1 प्लस x2 कर देंगे और y1 प्लस y2 कर देंगे, और साथ i हैट और j हैट ऑफ कोर्स लिख देंगे एज दी यूनिट वेक्टर्स जो हमें इसकी डायरेक्शन बताएंगे. दैन नेक्स्ट वी हैव, अगर हमने दो को माइनस करना है, सो द माइनस विल बी a प्लस
ऑफ माइनस बी. दैट बेसिकली मीन्स कि हमें जो बी है हमने उसको फ्लिप कर देना एंड देन वी विल ऐड इट टू ए. सो ए प्लस ऑफ माइनस बी विल बी ऑफ कोर्स कि हमने जो बी है उसको नेगेटिव लिया, माइनस x2 और माइनस y2 हो गया उसकी क्या कहते हैं उसकी जो कंपोनेंट्स हो गए इन दिस केस. नेक्स्ट हम 3D स्पेस में आते हैं. 3D स्पेस में हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं. वी हैव एन एडेड z एक्सिस. सो इट्स प्रीटी सिंपल. इट्स द सेम थिंग, सेम रिप्रेजेंटेशन x y z बस हो जाएगा एंड x i हैट प्लस y j हैट प्लस z k हैट हो जाएगा. दैट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन इन 3D स्पेस. एंड लास्टली अब हम बात कर लेंगे अ वेक्टर इज ओनली पॉसिबल व्हेन. तो हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर इन 3D स्पेस गिवन है, हमें एक 3 सेट ऑफ x, y and z values given है, तो how can we make sure कि that is a vector which is actually real, मतलब it is possible to draw that vector. तो उसके लिए हमारे पास एक condition है which is कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. यहाँ पे alpha is the angle that it makes with the x-axis, beta is the angle that the vector makes with the y-axis, and gamma is the angle that the vector makes with the z-axis. इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू एंड द आंसर इज इन फैक्ट इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन बी श्योर दैट द गिवन वेक्टर इज एक्चुअली अ रियल वेक्टर.